Good morning, students. Today we are going to learn poem number 10, Tvam Eka Bhavani. Tvam Eka Bhavani. You are only the one shelter, you are only the one refuge for us. हमें आपकी शरण में ही रहना है. You are only the my shelter, भवानी. So भवानी is a goddess भवानी. देवी का नाम है भवानी. स्तोत्र काव्य is an exclusive tradition of Sanskrit literature. श्लोकास यूज फॉर प्रेजिंग आर कॉल्ड स्तोत्रस. स्तोत्र में हमेशा जो देवी देवता होते हैं उनकी प्रशंसा की जाती है. दैट इज़ अ स्तोत्रस. समटाइम्स सच स्तोत्रस आर इन अ फॉर्म ऑफ वन मुक्तक और समटाइम्स दे आर इन अ नंबर ऑफ वर्सेस like 5, 6, 8, etc. In this poem, we are going to learn 5 stotras. Stotras composed by Adi Shankaracharya have become very famous. The exact figure of stotras written by him has not been found yet. Many stotras are well known in his name. Verses presented here are selected from one of his famous stotras having 8 stanzas. So we are going to learn 5 stanzas over here. So this is the picture of goddess Bhavani, and there down there is a family, those who are doing prayer for goddess Bhavani. Goddess Bhavani is praised here. Every verse of stotra focuses on unparalleled surrender of devotee and faith of an innocent child. एक बच्चे का भरोसा बहुत ही पवित्र होता है. बिकॉज जो बच्चा होता है, जो एक बालक होता है, उसके अंदर तेरा मेरा या अपना पराये का भेद नहीं होता है. सो दे आर वेरी इनोसेंट इन देयर प्रेयर. तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि छल कपट क्या होता है. सो दे आर हैविंग अ फेथ, अ डीप फेथ ऑन गॉडेस भवानी. और जो डेवोटीज होते हैं उनको कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तेरा आशीर्वाद चाहिए, मुझे तेरी शरण चाहिए. सो दे आर प्रेजेंट very innocently and with a very pure heart. So we have seen in picture that goddess Bhavani is praised here. Every verse of stotra focuses on unparalleled surrender of a devotee and faith of an innocent child. बच्चा का मन बहुत ही पवित्र होता है. उनके अंदर कोई बैर की भावना या तो सही गलत की पहचान नहीं होती है. तो वो जो मांगते हैं वो बड़े ही दिल से मांगते हैं. एंड सम devotee, those who are having a very huge faith on a goddess and God. So it shows that the devotee reciting this stotra is not at all interested in worldly relations like mother father, brother sister, son daughter, husband wife and so on. So they are not interested in any relationship. They just know the God. आप ही मेरे हो और मैं ही आपका शरणार्थी हूँ. तो मुझे आपकी शरण में ले लीजिए, आपके सिवा मेरा और कोई नहीं है. फॉर हिम गॉडेस भवानी इज़ द ओनली रिसोर्ट. मोर ओवर ही इज़ ऑल्सो नॉट इंटरेस्टेड इन अ ceremonial rites. Moreover, he is also not interested in ceremonial rites like scripture, austerity, pilgrimage, vows, fasting, etc. हम फास्ट रखते हैं, हम भगवान की शरण में जाते हैं, हम पिलग्रिमेज करते हैं. वह सब क्या होता है? वह भगवान को ढूंढने की कोशिश होती है, तो भगवान का जो आशीर्वाद लेने के लिए हम करते हैं. बट ही इज़ टेलिंग दैट डेवोटी इज़ टेलिंग दैट यू आर ओनली द वन फॉर मी एंड आई एम ओनली योर शरणार्थी. ही लाइक्स ओनली टू सीक रेफ्यूज टू हिज वर्थ वर्शिपिंग गॉडेस भवानी. ही हैज़ फुल फेथ दैट इन एनी सिचुएशन गॉडेस भवानी ओनली इन हिज गार्डियन. वो हमेशा उसका मार्गदर्शक बनकर रहेंगे, हमेशा उसको सही रास्ता दिखाएंगे. क्योंकि दुनिया में सब जो रिश्ते नाते हैं वो कभी अपने होते हैं तो कभी पराये हो जाते हैं. सो बेटर गॉड विल बी देयर विथ मी फॉर एवर. दैट थिंग बाय थॉट बाय devotees. This stotra can be sung beautifully. We have to learn a lesson that it is better to live a life full of faith, virtues and simplicity than to perform ceremonial rites. सबसे पहले जो आता है वो होता है भगवान की पूजा करना, भगवान को दिल से उसका ध्यान धरना. Then the relation comes in our life.
So here they are telling about faith, virtues and simplicity. Then to perform ceremonial rites, Goddess Bhavani always protects a person who lives such a life. So first of all, I will sing this stotra and you will listen and you will also see. न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्रो न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न जाया न विद्या न वृत्ति ममेव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तन्त्रं न च स्तोत्रमन्त्रं न जानामि पूजा न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि न जानामि पुण्यं न जानामि तीर्थं न जानामि मुक्तिं लयं वा कदाचित् न जानामि भक्तिं व्रतं वापि मातः गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले जानले पर्वते शत्रुमध्ये अरण्ये शरण्ये सदा मां प्रपाहि गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि अनाथो दरिद्रो जरारोगयुक्तो महाक्षीणदीनः सदा जायवक्त्रः विपत्तो प्रविष्टः प्रनष्टः सदाहं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि. So students, this way you have to sing poem with me, and this 5 number shloka and this 4 number shloka Vivade Vishade, that is a board shloka. These 2 shlokas you have to learn very well. These 7 shlokas which I given you first also, that shlokas it is very important for board exams. So now we are going to learn poem number 10 Na Tato. So first of all we will learn first stanza. न तातो न माता न बंधु न दाता न पुत्र न पुत्री न भृत्यो न भर्ता न तातः. तातो मीन्स इट इज़ अ बहुवचन. सो तातो यानी फादर. कोई मेरा पिता नहीं है, कोई मेरी माता नहीं है. न तातो न माता न बंधु न दाता. सो नो वन इज़ अ डॉटर एंड नो वन इज़ अ सर्वेंट एंड नो वन इज़ अ मास्टर. कोई बेटा नहीं है, कोई बेटी नहीं है, कोई भृत्य और भर्ता नहीं है, यानी कोई सर्वेंट और मास्टर भी नहीं है. न जाया न विद्या न वृत्ति मम एव गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि. न जाया मीन्स वाइफ. My wife is not mine, and न विद्या, so knowledge is not mine. न वृत्ति मम एव, so here tell means livelihood is not mine. यानी जो जीने की जो इच्छा है वो भी मेरी नहीं है. मेरी इच्छा सिर्फ आपको भजने की है, आपकी प्रशंसा करने की है. सो ओ भवानी, यू आर माई ओनली रेफ्यूज, यू आर माई सोल रेफ्यूज. आप ही एकमेव, यानी आप ही एक मेरे अकेले मेरे ही हो, या और मैं ही अकेला आपका हूँ और दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है. सेकेंड नंबर श्लोका. न जानामि दानं न च ध्यानयोगं न जानामि तंत्रं न च स्तोत्र मंत्रं न जानामि पूजां न च न्यासयोगं गतिस्त्वं गतिस्त्वं त्वमेका भवानि. सो राइट साइड देयर इज अ पिक्चर इन दैट ध्यान धरते हैं. जब हम साधना में बैठते हैं तो हमारा जो सब इमोशंस होता है, जो हमारे सारे इमोशंस होते हैं, उस पर हम काबू पा लेते हैं और टोटली हम भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं. सो इन लेफ्ट साइड ऑल्सो आई हैव शोन सम इमोशंस विच ह्यूमन बींग्स आर हैविंग इन देयर होल बॉडी.
तो इन सब पर जो काबू पा जाता है, इन सब पर जो विजय पाता है, वही सच्चा भक्त होता है, वही सच्चा देवोटी होता है। सो न जानामि दानम न च ध्यानयोगम, न जानामि दानम न च ध्यानयोगम, न जानामि तंत्र न च स्तोत्र मंत्र। न जानामि मीन्स मैं नहीं जानता, दानम न च ध्यानयोगम, दानम मीन्स टू डोनेट करना, न च ध्यानयोगम, और मैं ये भी नहीं जानता हाउ टू डू प्रोफॉर्ड मेडिटेशन। मुझे ध्यान योग भी पता नहीं है, मुझे बस आपके ही शरण में जाना है, वही पता है। न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम। तंत्र मीन्स इट इज़ अ सिस्टम ऑफ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। सो स्पिरिचुअल जो डिज़ायर होती है, जो हमारी डिज़ायर होती है, उन सब पर काबू पाके हमारे अंदर जो स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, उनके बारे में यहाँ बात हो रही है। न जानामि तंत्रम न च स्तोत्र मंत्रम। स्तोत्र मंत्रम यानी सो हियर इट इज़ अ दे आर शोइंग स्तोत्र। मैंने बताया था वैसे कि जब किसी गॉड या गॉडेस के बारे में उसकी प्रेज की जाती हो, सो दैट इज़ अ स्तोत्र एंड मंत्र। न जानामि पूजा न च न्यास योगम। पूजा, व्हेन वी आर डूइंग अ प्रेयर इन द इवनिंग एंड मॉर्निंग, जब हम पूजा करते हैं तो हम भगवान का ध्यान धरते हैं, तो यह सब यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब हम भगवान का ध्यान धरते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसमें होता है। सो न्यास योगम, हियर दे आर शोइंग वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दोज हु आर हैविंग बॉडी ऑफ अ डिफरेंट डेटीज। मीन्स हमारा ध्यान पूरी तरह से आपके ऊपर केंद्रित है, भगवान ही मेरे आजू बाजू, मेरे चारों ओर उनका ही प्रकाश फैला हुआ है। गति स्वम त्वमेका भवान। सो आई एम फुल्ली ब्लेस्ड बाय योर ब्लेसिंग्स, बाय योर ब्राइटनेस ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी। आपका जो प्रकाश है, आपका जो आशीर्वाद का जो प्रकाश है, मैं उससे ही गिरना चाहता हूँ। मुझे और किसी भी चीज़ को जानना नहीं है, और मैं जानता भी हूँ तो मुझे वह देखना नहीं है। बस भगवान, गॉडेस भवानी, यू आर ओनली द वन रेफ्यूज, वन शेल्टर ओनली फॉर मी। सो ही इज टेलिंग, आई डोंट नो practicing charity, nor do I know the way of profound meditation. I do not know tantra. I do not know the stotra. Stotra is a poem praising for God. Or mantra. Mantra is a hymns from the Vedas. I don't know how to worship. मुझे पूजा कैसे करते हैं वो भी पता नहीं, मुझे सिर्फ भगवान आपके बारे में ही पता है, और किसी चीज़ के बारे में मैं नहीं जानता हूँ। मैं एक अजान बालक की तरह एक आपका सच्चा भक्त हूँ। नॉर डू आई नो द टेक्निक ऑफ न्यास। न्यास इज द ब्लेसिंग वर्ड ऑफ अ मंत्र, सो दैट इज पार्ट ऑफ अवर बॉडी। ओ गॉडेस भवानी, यू आर माई ओनली रेफ्यूज, यू आर माई सोल, यू आर ओनली द वन रेफ्यूज फॉर मी। न जानामि पुण्यम न जानामि तीर्थम न जानामि मुक्तिम लयम वा कदाचित। सो हियर लय मीन्स इट इज़ अ डीप कॉन्सेंट्रेशन, वेरी डीप कॉन्सेंट्रेशन। कोई आजू बाजू की कोई चीज़ आपके लिए, जो पूजा पाठ होते हैं, जो मेडिटेशन होता है, जो दिखावे का जो भी दिखने वाली भी जो भी चीज़ है, मैं उन सब से बिल्कुल परे हूँ। वैसे तो भगवान की पूजा अर्चना हम इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान हमारे पर खुश हो जाए, बट दैट ऑल्सो आई डोंट नो, आई डोंट वॉन्ट टू डू एनीथिंग। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ भगवान आपको ही जानता हूँ। ये सब जो है वह मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि उन सब से भी परे है आपका आशीर्वाद जो मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। मीन्स आई वॉन्ट कम टू इन योर शरण डायरेक्टली, मुझे आपकी शरण में डायरेक्टली आना है। ये सब चीज़ें हैं वह मैं नहीं जानता हूँ। न जानामि भक्ति व्रतम वपि मातः गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। सो आई डोंट नो डिवोशन, भक्ति यानी डिवोशन। I don't know religious practice of वो, and I don't know anything। व्रत करना यानी भगवान के लिए उपवास करना, भूखा रहना, तो ये जो दुनिया ने सिखाई हुई बातें होती है, जो हमारे पूर्वजों ने जो सिखाई हुई बातें होती है, मैं ये नहीं जानता हूँ। आई जस्ट ओनली फॉलो यू एंड योर वर्शिप। गतिस्त्वम त्वमेका भवानी। विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे जले चानले पर्वते शत्रु मध्ये। विवादे मीन्स इन अ
in a very arguments, in a very deep arguments. Vishade, in a sorrow. Pramade, in a laziness. Pravase, in a traveling. Jale, cha anale. Here jale is the water, cha anale. And anale, anale means in a fire. पर्वते शत्रुमते, यानी पर्वत पर हो यानी शत्रु के बीच में हो. वट अ डेवोटी इज टेलिंग, विवाद यानी कोई भी, कुछ लोग कैसे होते हैं कि सिर्फ पूजा और भक्ति करना ही जानते हैं, और कुछ लोग कैसे होते हैं कि सिर्फ दुख के समय में, संकट के समय में ही वह भगवान को याद करते हैं. बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ डेवोटी ऑफ योर्स. मैं आपका ऐसा भक्त नहीं हूँ जो स्वार्थ के समय पे ही आपको याद करूँगा. बट विवादे विषादे प्रमादे प्रवासे, जले चानले पर्वते शत्रुमते, यानी मैं पानी में या तो आग में, पर्वत पे, शत्रु मध्य. अगर मैं कहीं पर भी होगा, शत्रु मध्य मीन्स इन बिटवीन ऑल द एनिमल्स. यू विल प्रोटेक्ट मी, मैं इन सब में से परे हूँ, मुझे सिर्फ आपकी शरण का ही मालूम है, मैं इन सब के अंदर पढ़ना नहीं चाहता हूँ. सो ओ भवानी, माई प्रोटेक्टर, ऑलवेज प्रोटेक्ट मी इन आर्ग्यूमेंट, सोरो, लेजीनेस, ट्रैवल, वाटर, फायर. शत्रु मध्य मीन्स इन अ वाटर, फायर एंड इन अ बिटवीन माई एनिमीज. अरण्य शरण्य सदा माँ प्रपाही. माँ प्रपाही मीन्स प्रोटेक्ट मी, सेव मी, मुझे सुरक्षित कर. अरण्य और शरण्य यानी बाग में और वन में. गतिस्वम गतिस्वम त्वमेका भवानी. इन ऑन अ माउंटेन अमोंग एनिमीज यू आर माई ओनली रेफ्यूज, यू आर माई सोल रेफ्यूज. आप मेरे शरीर के नहीं, मेरी आत्मा के भगवान हो. यानी मैं अपनी आत्मा से ही मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ. मेरी जो सिक्स सेंस होती है, मैं उससे ही मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ. मेरे लिए जो दिखावे की जो चीज़ें होती है, जो भगवान के मंदिर में जाकर उसकी आरती करना, ये सब तो बाहरी दुनिया के लिए होता है. मैं तो अंदर से, आत्मा से ही मैं आपका सच्चा भक्त हूँ. गतिस्वम त्वमेका भवानी. अनाथो दरिद्रो, अनाथो मीन्स जिसका माता पिता कोई नहीं होता है, जो अनाथ होता है. दरिद्रो मीन्स गरीब, those who are very poor. So here in this line what they are saying about orphan or poor. महाक्षीणदीनः सदा जायवक्त्र. महाक्षीणदीन means very weak and poor. Those who are having, those who are very weak and poor. सदा always, जायवक्त्रः इन अ विथ अ डलनेस ओवर द फेस. मीन्स आपका जो चेहरा होता है वो बहुत ही जब डल हो जाता है, मीन्स लाइवलीनेस आपके चेहरे पर बिल्कुल नहीं दिखता है, शुष्क चेहरा दिखता है, एकदम बुझा बुझा सा चेहरा दिखता है. सो आई एम लाइक दैट. विपतो प्रविष्ट प्रणष्ट सदा अहम. सदा में यानी हमेशा में. विपतो इन द कैलेमिटी, प्रविष्ट प्रणष्ट when entered and ruined. Gatiswam Tvameka Bhavani. So what he says, O Bhavani, I am an orphan and I am a poor. अगर तू मेरे सामने वाली व्यक्ति है तो मैं ऑर्फन हूँ. मीन्स तू मेरा माँ बाप बनना चाहता है भवानी, तो आई एम अ ऑर्फन. आई एम अ पुअर. इफ़ यू आर हैविंग य ट्रेजर ऑफ योर ब्लेस, देन आई एम अ पुअर. आई एम सफरिंग फ्रॉम ओल्ड एंड डिजीज. मैं मुसीबत में हूँ, यानी मुझे तकलीफ़ है. किसकी? मुझे आपके शरण में आने की ही चाहत है और किसी और चीज़ की डिज़ायर नहीं है. माई फेस ऑलवेज डल एंड आई एम ऑलवेज सराउंडिंग बाय कैलेमिटीज़. मैं बर्बाद हो जाऊंगा या तो मैं कुछ भी जगह पर मैं फंस जाता हूँ, तो मुझे शरण आपकी ही चाहिए. मुझे जो इंसान के जीवन में आने वाली जो भी संकट होती है, या तो कोई सुख होता है या तो संकट होता है या तो कोई मुसीबत होती है, तो मुझे उन सब में से सिर्फ भवानी माँ आपका ही शेल्टर चाहिए. यू आर ओनली द माई रेफ्यूज. अब मेरे बचाने वाले सिर्फ आप ही हो. आपकी ही शरण दुनिया में सबसे परे है. आप ही मेरे सब कुछ हो. मीन्स इंसान के पास जो हृदय होता है, वह हृदय के अंदर जो सो मैं हर तरह से मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ. मैं एक ऑर्फेन हूँ. अगर आप मेरे माँ बाप हो तो मैं एक ऑर्फेन हूँ. मैं गरीब हूँ. मैं सब कुछ हूँ. मैं हर चीज़ों से मैं घिरा हुआ हूँ. मैं वेरी वीक हूँ. मेरे पे आई एम वेरी वीक. आई एम हेल्पलेस. आई एम मिजरेबल. मैं आपकी दया, आपकी आशीर्वाद की हमेशा कामना रखता हूँ.
क्योंकि आपकी दया और आशीर्वाद से ही मेरा जो अंतर का जो उद्धार है, मेरी अंतरात्मा का जो उद्धार है वह तभी हो सकता है जब आप अपना हाथ हमारे सर पर रख दें। ये जो उपवास रखते हैं, जो पूजा करते हैं, तो ये सब तो सिर्फ दुनिया के लिए है, मगर मैं तो आत्मा से ही आपका सच्चा शरणार्थी हूँ। सो माँ भवानी, मुझे हमेशा आपकी शरण की इच्छा रहेगी और हमेशा आपके आशीर्वाद के लिए तत्परता रहेगी। सो हियर poem number 10 we are going to finish, and you have to write this meaning. Students, you have to complete all the meanings in your fair book. Compound words you can learn, but these meanings you have to write in your fair book. And I am going to send you exercise of poem number 10 that you have to finish in your fair book. Thank you.